गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज क्लियर है? Call is now being recorded. Yes, sir. यस सर, यस सर, Yes. यस सर। ओके, थैंक यू। सो लास्ट टर्म पे हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो जब तक सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, आप एक वीडियो बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक है, उसको मैं लिंक उसका शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे भी करता हूँ। What is intrinsic and extrinsic semiconductors? The semiconductor is divided into two types. Intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. The pure form of the semiconductor is known as the intrinsic semiconductor, and the semiconductor in which intentionally impurities are added to make it conductive is known as the extrinsic semiconductor. In short, intrinsic is pure, extrinsic is impure. The conductivity of the intrinsic semiconductor becomes zero at room temperature, while the extrinsic semiconductor is very little conductive at room temperature. The detailed explanation of the two types of the semiconductor as follows. Intrinsic semiconductor. An extremely pure semiconductor is called as intrinsic semiconductor. On the basis of the energy band phenomenon, an intrinsic semiconductor at absolute zero temperature can be seen here. Its valence band is completely filled and the conduction band is completely empty. When the temperature is raised and some heat energy is applied to it, some of the valence electrons are lifted to conduction band, leaving behind holes in the valence band. The electrons reaching at the conductive band move randomly. The holes created in the crystal are free to move anywhere. This behavior of the semiconductor shows that they have a negative temperature coefficient of resistance. This means that with the increase in temperature, the resistivity of the material decreases and the conductivity increases. Extrinsic or doping semiconductor. A semiconductor to which an impurity at controlled rate is added to make it conductive is known as a extrinsic semiconductor. An intrinsic semiconductor is capsule is capable to conduct a little current even at room temperature, but it is not useful for the preparation of various electronic devices. Thus, to make it conductive, a small amount of suitable impurity is added to the material. The process by which an impurity is added to the semiconductor is known as doping. The amount and type of impurity which is to be added to the material has to be closely controlled during the preparation of the extrinsic semiconductor. Generally, one impurity added हेलो। हेलो।
हेलो। purity. हाँ सर, आवाज सही से नहीं आ रही है। मैंने लिंक शेयर किया है, एक बार उसके थ्रू आप वॉच करके देखो। ओके सर, देख रहा हूँ मैं। I am again pasting the link. हेलो। हेलो। Yes, तो sir. Yes, आपने sir. वीडियो देख लिया? Yes. आई होप वीडियो कंप्लीट कर लिया होगा आपने। वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है, पता नहीं ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम होती है चलने में, प्रॉब्लम। ओके, बाद में आप देख लेना, ठीक है? बाद में मैं फिर से शेयर कर दूंगा लिंक एंड यू कैन वॉच अगेन। Okay, sir. Okay, so today we will discuss about the extrinsic semiconductors और ये क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई डाउट है प्रीवियस क्लास में? प्रीवियस क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था उसके अबाउट एनीथिंग? जो कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये जो कल क्लास थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ और हाँ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब दोनों साथ हाँ टाइमिंग था, तो हाँ। मतलब ये मेरा वैसे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है, तो मेरे लिए कौन सी मतलब लेनी चाहिए थी उस टाइम? आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो आप बी सेक्शन को बिलोंग करते हो, तो तो ये आप दोनों क्लास में मेरे लिए ही नहीं रहोगे। नहीं, इसमें ये तो भी नहीं रहोगे और वो भी केमिस्ट्री भी नहीं रहोगे। बी सेक्शन में आपको लेना पड़ेगा क्लास। अच्छा, ये क्लास ए है, सेक्शन ए है। यस यस, ये सेक्शन ए है। थैंक यू सर। ओके, सो हम बात करेंगे अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में टू टाइप्स होते हैं, एक तो एन टाइप और एक पी टाइप।
So these types are based on basically the group atoms which are doped into the silicon crystal. तो जो हमारे पास previous crystal था ये silicon का, laser pointer mode. So ये हमारा प्योर सिलिकॉन था स्ट्रक्चर, इसमें सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स थे. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज प्योर सिलिकॉन और प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको कई नामों से हम बोल सकते हैं क्योंकि सारे के सारे एटम्स हमारे सेम है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही लो थी. व्हाई? बिकॉज जब तक आप एक बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे तब तक आपका कंडक्टिविटी इनिशिएट नहीं होगी, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए उस पर्टिकुलर मटेरियल की एनर्जी बैंड, जो फॉरबिडन एनर्जी है, उतना इक्विवेलेंट आपको एनर्जी देना पड़ेगा थ्रू एक्सटर्नल सोर्स. तो एक्सटर्नल सोर्स भी हमने डिस्कस किया था 3-4 तरीके के. तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था कि इतने ज्यादा एनर्जी देने पे हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अचीव हो रही है. So to improve the conductivity of semiconductors, हमने क्या किया, एक नया मेथड प्रपोज किया, दैट इज डोपिंग बेस्ड मेथड. डोपिंग बेस्ड मेथड क्या होता है कि इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. इम्प्योरिटी मीन्स कि कोई अदर एलिमेंट ऐड करते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रुप 4. तो ग्रुप 4 के अलावा हम कोई भी अलग एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे. तो वो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? जनरली हम यूज करते हैं उसके एक आगे का ग्रुप और एक पीछे का ग्रुप. जैसे ये ग्रुप, हेलो, सो हमें इसके आगे का ग्रुप मींस, अभी हम ग्रुप 4 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 4 के आगे ग्रुप 5 होता है और दूसरा एक पीछे का ग्रुप 3. ठीक है. So if we talk about the group 5 elements, अगर इसकी डोपिंग करते हैं तो ग्रुप 5 में हमारे ये एलिमेंट्स आते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? ग्रुप 5 एलिमेंट्स है, दैट मींस कि आउटर शेल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो आउटर शेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अगर इस पर्टिकुलर सिलिकॉन स्ट्रक्चर में किसी एक एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा कि हर सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, 4 की तो बॉन्डिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा. तो वही हमने यहाँ पे शो किया है. एक सिलिकॉन के एटम को रिमूव करके हमने ग्रुप 5 के एलिमेंट को डोप किया है, और डोप करने के बाद 4 तो बॉन्डेड है, बट जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑन द एटम जो आपका 5 ग्रुप का है, वो आपका यहाँ पे विजिबल है. तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमने फास्फोरस को एम्बेड किया है, मतलब डोप किया है. सो दैट फास्फोरस एटम क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो इसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. देन P मींस फास्फोरस फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद सिलिकॉन एटम एंड डोनेट 5th इलेक्ट्रॉन टू क्रिस्टल एंड इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. अब जब ये सारे के सारे बॉन्डेड हैं और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इट कैन मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल. मतलब अगर आप T इक्वल्स टू 0 केल्विन की बात करो, तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑल आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड. कोई भी कंडक्शन बैंड में नहीं होता है. तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑफ दिस फास्फोरस एटम, वो क्या करेगा, फ्री टू मूव होगा. फ्री टू मूव मीन्स उस वैलेंस बैंड में वो कहीं पे भी मूव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन मूव टू दिस पोजीशन. तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपना बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है. ठीक है. तो ऐसे ये कहीं भी मूव कर सकता है विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी. ठीक है, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, और कंडक्शन हमारा हो नहीं रहा है क्योंकि ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये 5th इलेक्ट्रॉन है और ये आपका वैलेंस बैंड में है. अब आप एक बात सोच के बताओ कि
what will be the amount of energy required for this electron to free from this atom, to get freed from this atom. कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से फ्री कराने के लिए. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मतलब प्रॉपर अमाउंट, मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी से इस बॉन्ड की ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी. इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो सोच करके बताओ. मेरा क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नहीं होता है, मतलब आप मतलब बहुत ही क्लोज हो आंसर के. क्वेश्चन आपको समझ में आया सबको? मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, रिस्पॉन्स दो. सर फिर से एक बार बोलिए. सपोज हमारे पास ये एक्स्ट्रा एटम हमने ऐड किया है, ठीक है, ये डोपिंग हमने की फास्फोरस की. और फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी बॉन्डेड विथ द अदर सिलिकॉन एटम्स. तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे बॉन्डेड है सिलिकॉन एटम से. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड जो पहले से फॉर्म्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, और वहां से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो उसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है, 1.21 इन केस ऑफ सिलिकॉन. तो 1.21 इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की के लिए जरूरत होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का होता है. बट अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट केम विद दिस फास्फोरस एटम, तो उसको अगर रिमूव करेंगे तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? इसके बराबर होगी या इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी जो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड? कम, ज्यादा, इक्वल, क्या होगा? तीनों ऑप्शन में से आप चूज करो. कम. सर कम होगी. और कोई? ठीक है, और कोई? किसी को लग रहा है ज्यादा या इक्वल होगा? लेस होगा सर. हम्म, सर कम कोई होगा. भी? ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर है, क्योंकि हमें जो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस एनर्जी. ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारी होती है वो 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है. तो अब आप यू कैन इमेजिन कि 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको इस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लग रहा है, एंड इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपको रिक्वायर्ड है 0.045. तो ऑर्डर आप देख लो, एक जगह 1.21 है और एक जगह 0.045 है. तो इतने ऑर्डर का चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. नाउ इसके बाद हमारा आता है 2 लॉज हैं जो हमें बस याद रखने हैं. एज सच अभी इस पर्टिकुलर सेशन में तो कोई इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू नीड टू नो कि इसका आगे भी काम आएगा. इस पे क्वेश्चन आता है मास एक्शन लॉ. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? आई एम जस्ट कोटिंग द स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन प्रोटॉन. मतलब जितने पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्ज है उतना ही नेगेटिव नंबर ऑफ चार्ज है. तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिलिकॉन का जो एक क्रिस्टल है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर. तो ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा, इधर आप डोपिंग करो या डोपिंग ना करो. तो इन केस ऑफ प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर यहाँ भी आपका ये पूरा का पूरा न्यूट्रल था, और इस पर्टिकुलर केस में भी आपका ये हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा. ठीक है सर. हाँ बताइए. सर आपने बोला था सिलिकॉन से या तो एक ग्रुप आगे या एक ग्रुप पीछे. तो सर पीछे वाले ग्रुप जैसे हाँ. बोरोन है, तो बोरोन के केस में क्या होगा? बताऊंगा, अभी आएगा. वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है. अभी तक क्लियर है? वो कैसे हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन आगे है. अभी 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 हम ये मान के चल रहे हैं, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो टोटल आपका क्रिस्टल होता है दैट इज
न्यूट्रल इन नेचर, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है व्हेन यू डोप विथ एनी एक्सटर्नल सब्सटेंस। दूसरा आपका लॉ है मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, total number of electrons and total number of holes at a particular temperature, आपके उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मास एक्शन लॉ का मतलब क्या है? अगर हम इंट्रिंसिक केस की बात करें तो इंट्रिंसिक केस में क्या था कि जब हमें बॉन्ड ब्रेक करते थे तो बॉन्ड ब्रेक करने पे जो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होते थे, दैट ऑल आर इक्वल एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मास एक्शन लॉ अप्लाई करें तो हमारा कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। चेक करके देखो आप, एम एन एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी एन और एन आई के इक्वल है, तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। इस केस में अगर देखो आप, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स। तो जब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा दैट मींस कि इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो एक अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, और इलेक्ट्रॉन होल जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने होल आपके जनरेट होंगे इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? Ni स्क्वायर के इक्वल ही होगा, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स, दैट विल बी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके पास पहले से सिलिकॉन स्ट्रक्चर था, इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर में आपने एक एक्स्ट्रा एटम ऐड किया जो कि विच इज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो पहले से ही उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये जितने भी इसके, हेलो, क्या क्या प्रॉब्लम है? जॉर्डन फ्लोइड्स सर, ये कोई प्रेजेंट कर रहा है सर, कौन है सर? ओके, वो एक्सीडेंटली उससे प्रेस हो गया होगा आई थिंक। अब श्योर है? यस सर। ओके, नाउ इंट्रिंसिक केस का क्लियर है, तो हम इसकी बात कर रहे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर की। सो एक्सट्रिंसिक केस में क्या होगा कि जब जितनी बार आप डोपिंग करोगे डिफरेंट एटम्स की, तो डिफरेंट एटम के अकॉर्डिंग क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप मूव कराओगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में ऑब्वियसली इसको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कितनी है? 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दैट इज मच लेस देन द पर्टिकुलर फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये इजीली आपका कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री होल्स। होल्स यहाँ पे कैसे जनरेट होंगे? जब आप एक्सेसिव उसको एनर्जी दोगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन विल मूव टू कंडक्शन बैंड और जो होल रहेगा वो आपका वैलेंस बैंड में रहेगा। तो अब आप सोच के देखो कि जितने जितने नंबर ऑफ एटम्स आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे अदर ग्रुप के, उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होंगे इन द क्रिस्टल, एंड दैट विल इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। इस मास एक्शन लॉ को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू कीप द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इसको आप मतलब कह सकते हो कि वैलिड इक्वेशन है। अगर आप टेम्परेचर वैरी करते रहोगे तो दिस इक्वेशन विल नॉट होल्ड। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द
value of total number of electrons and the value of total number of holes, if you multiply them both, तो क्या होगा? The resultant will be constant and which is intrinsic concentration का square. तो जो intrinsic concentration है, intrinsic concentration हमेशा constant रहता है. क्यों constant रहता है? क्योंकि हम इस particular semiconductor की बात कर रहे हैं. इस केस में जो हमारी वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर वो कांस्टेंट होगी. जो हम आगे देखेंगे इन न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि सिलिकॉन में जो वैल्यू होती है वो 1.5 into 10 to the power 10 होती है अप्रोक्सीमेट, और जो आपका जर्मेनियम होता है उसमें 1.38 into 10 to the power 13 होती है. तो उसमें 10 to the power 13 के ऑर्डर का होता है ये Ni वैल्यू, और सिलिकॉन में 10 to the power 10 के ऑर्डर का होता है ये वैल्यू. और आपको पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि जर्मेनियम का जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन. दैट इज व्हाई उसका जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं Ni क्या है वो डिपेंड करेगा आपका क्रिस्टल पे. क्रिस्टल आपका किस पे बेस है? अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए उसकी वैल्यू यूज करनी है, अगर जर्मेनियम है तो उसके लिए उसकी Ni की वैल्यू यूज करनी है. बट द प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट एट एनी मोमेंट इफ वी कीप द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ होल्स का मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर. अब इस नोटेशन की भी एक मतलब मीनिंग है इस नोटेशन का. ये क्या है नोटेशन? सो Nm रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप. जो सबस्क्रिप्ट में है वो n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिनोट कर रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स p रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ होल्स. नंबर ऑफ होल्स इन n टाइप इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्लियर है सबको? एनी डाउट? सर सर रिपीट एक बार कीजिए तो. ठीक है. सो ये जो आपका ऊपर है रिपीट कीजिए ना. कर रहा हूं. तो इसका मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो ये n है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप सेमीकंडक्टर. ये जो सबस्क्रिप्ट में है दैट रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. कौन से टाइप का आप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो. यहाँ पे जो P है P रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ होल्स इन n टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि n आपका सबस्क्रिप्ट में है. फिर यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I से इंट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिप्रेजेंट करता है Ni को. अभी क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है. अब यही सेम रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे भी है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी में. लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन n टाइप इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इन n टाइप प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय डोनर एटम. डोनर एटम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये 5 ग्रुप का एलिमेंट है दैट डोनेट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे रहा है. ठीक है. जब ये क्रिस्टल को दे रहा है दैट मीन्स कि ये क्या हुआ? डोनर हुआ. क्लियर है? यस सर. ठीक है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इन n टाइप प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डोनर एटम. ठीक है. तो डोनर एटम के थ्रू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ होल्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. अगर लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी हमें इंट्रिंसिक में अप्लाई करना होता तो वहां पे क्या हो जाता? Nd आपका वहां पे नहीं रहता, वहां पे सीधे हो जाता n इक्वल्स टू p, जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है लास्ट में. n इक्वल्स टू p इक्वल्स टू ni. सो आई थिंक ये एक्सट्रिंसिक का n टाइप आपको क्लियर होगा. क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है.
So we can say majority is electrons और minority is holes. तो majority जो कैरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही आपका हेल्प कर रहे हैं कंडक्शन में. सो कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे, थ्रू मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा है उतने जो आपकी करंट की वॉल्यूम है वो ज्यादा होगी. तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है इस पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और माइनॉरिटी आपके होल्स है, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है इन दिस सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट वी मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप. अब एन टाइप में हमने क्या देखा था कि हमारे पास ग्रुप 5 का एलिमेंट था विच प्रोवाइड्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन. तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता था. यहाँ पे क्या है, उसका जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ पे वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में. तो आउटर शेल में जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को हम कॉल करेंगे, और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम. तो इन 3 एलिमेंट्स के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होते हैं, एंड दैट those 3 electrons will form 3 covalent bonds with silicon atom. तो होगा क्या, आपने प्योर सेमीकंडक्टर था आपके पास, प्योर सिलिकॉन स्ट्रक्चर था, उसमें आपने डोपिंग की बोरॉन एटम की. जब बोरॉन एटम की आप डोपिंग करोगे तो होगा क्या कि 4 बॉन्ड्स थे सिलिकॉन के जो पहले कनेक्टेड थे इंट्रिंसिक केस में. नाउ इफ यू रिमूव ए पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम तो क्या होगा, सिलिकॉन एटम को हटाते ही वो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे बॉन्डिंग के लिए, और इस बोरॉन को अगर आप पुट करते हो बाय डोपिंग तो 3 बॉन्ड्स आपके बन जाएंगे. 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर शेल में है बोरॉन के, तो 3 फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद सिलिकॉन होगा. यहाँ पे एक आपका बॉन्ड फ्री रहेगा सिलिकॉन का, ठीक है. तो उसकी वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, ठीक है. तो इस द बोरॉन एटम क्रिएट्स अ होल, तो इसको हम कह रहे हैं होल. होल मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो ये एक बॉन्डिंग होती और प्रॉपर स्टेबल स्ट्रक्चर होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक होल क्रिएट हो गया बाय डोपिंग दिस बोरॉन एटम. अब जैसे जैसे आप यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रक्चर में बोरॉन का डोपिंग करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स का इंक्रीमेंट होगा. नंबर ऑफ होल्स का इंक्रीमेंट मीन्स कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा, होल रहेगा, ठीक है. तो ये होल क्या करेगा, आपके करंट के कंडक्शन में हेल्प करेगा. वो कैसे करेगा हम आगे देखेंगे. अभी ये क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे आप बोरॉन एटम को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होते जाएंगे. तो वही मैंने एक्सप्लेन किया, बोरॉन फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद सिलिकॉन एंड फॉर्म्स 4th बॉन्ड विद होल फॉर्मेशन. सो जो चौथा बॉन्ड होगा वो होल फॉर्म करेगा, एंड इट कैन मूव फ्रीली अराउंड दी पर्टिकुलर सिलिकॉन स्ट्रक्चर. तो ये इजीली कहीं भी मूव कर सकता है एट प्रेजेंट, ठीक है. इसको कोई दिक्कत नहीं है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कहीं भी, जब तक इसको एक्साइटेशन अगर नहीं देवे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय एक्सेप्टर एटम, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो जब तक हमारे पास एक्सेप्टर एटम नहीं था, एक्सेप्टर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है. जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो ये बोरॉन एटम क्या होगा, इसका एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है. प्रीवियस केस में क्या था, इसका डोनेट करने की कैपेबिलिटी थी. यहाँ पे इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी. दैट्स व्हाई वी कॉल इट बोरॉन एज एक्सेप्टर एटम. तो एक्सेप्टर एटम क्यों है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है. जब इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो उसके थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे पी टाइप में, वो इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप पहले से है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेप्टर एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स
इन p टाइप। क्लियर है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी? किसी को डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो बस सिमिलर है इक्वेशन, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। पहले आपको क्या करो, याद रखने के लिए आप इस वाले एक्स्ट्रा टर्म को हटा दो। एक्स्ट्रा टर्म को हटा दोगे तो क्या होगा, n इक्वल्स टू पी, जो कि हमारे इंट्रिंसिक केस में था। n इक्वल्स टू पी हमें याद रखना है। अब जब हम डोनर एटम की बात करते हैं तो डोनर एटम क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। अगर डोनेट कर रहा है दैट मीन्स की नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, तो नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन बाई डोनर एटम। वैसे ही आप इसमें याद रख लो, पहले ये दोनों इक्वल्स थे, अब जैसे ही आपने बोरॉन एटम ऐड किया तो क्या होगा, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप ऑलरेडी पहले से था ही, और नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उसको आप इक्वेट कर लोगे। तो ये है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। इसमें भी सेम मास एक्शन लॉ लगेगा, बस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, वहां पे हमने एन टाइप लिया था, एन एन पी एन एन आई स्क्वायर, यहाँ पे आपका एन पी 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 एन आई स्क्वायर। एन पी मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर multiplied by number of free holes in p-type semiconductor equals to intrinsic concentration का स्क्वायर। क्लियर है मास एक्शन लॉ? किसी को भी कहीं पे डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे क्या होंगे, जैसे जैसे आप बोरॉन एटम को डोप करोगे, बोरॉन की डोपिंग करोगे तो क्या होगा, जो बोरॉन की वजह से जो होल आ रहा है वो मेजॉरिटी में होगा। तो इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर इज होल एंड माइनॉरिटी कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, एक चीज आपको मुझे बताना है कि जब भी आप कमेंट करते हो चैट बॉक्स में तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। सो अगर आपको कोई डाउट है तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। ठीक है, सो अगर अभी भी किसी को डाउट है कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी, उसको इस पर्टिकुलर डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो लिसन एंड लुक केयरफुली। सो फर्स्ट केस था आपका इंट्रिंसिक केस। इंट्रिंसिक केस में क्या था, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड में पहले जब आपका स्टेबल टेम्परेचर 0 डिग्री था तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो 0 डिग्री केल्विन पे एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। इंसुलेटर मींस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड इन वैलेंस बैंड और देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे फॉर कंडक्शन इन कंडक्शन बैंड। तो ये सारे के सारे बॉन्डेड रहेंगे, बट जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दोगे विच इज इक्विवेलेंट टू द बैंड गैप ऑफ द पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर, तो उस टेम्परेचर के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होगी और वो अगर बैंड गैप के बराबर होगी देन इट मींस कुछ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके ब्रेक होंगे। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट होगा।
तो सपोज यहाँ पे जितने नंबर ऑफ होल्स आपको दिख रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेंगे इन द कंडक्शन बैंड. So in that case, m number of free electrons equals to number of free holes हो जाएगा. यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डोपिंग हमने नहीं किया है. In that case, the total number of donor atom equals to 0. Total number of acceptor atom equals to 0. ठीक है. तो ये आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था. जब आपने एक टेम्परेचर पर्टिकुलर दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ. यहाँ पे आपका एक होल क्रिएट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री टू मूव है. ओके. नाउ अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस की. एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है? एक्सट्रिंसिक में हमारे पास दो केस है. फर्स्ट वन इज पी टाइप एंड सेकंड वन इज एन टाइप. जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. ठीक है. एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और आपने ये भी कहा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ही लो है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. तो जो एनर्जी इनके लिए रिक्वायर्ड थी उससे इसकी एनर्जी कम है. तो वी कैन से कि एक एनर्जी लेवल ऐसा होगा जहां से इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं आपके कंडक्शन बैंड में. ठीक है. मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको एनर्जी बहुत ही कम रिक्वायर्ड है टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड. इसको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो इस पर्टिकुलर फिगर में आप चेक करो. इस फिगर में हमें कौन सी ऐसी एनर्जी लेवल है जहां से 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर. कंडक्शन बैंड के एकदम क्लोजली एक एनर्जी बैंड दिख रहा है आपको. वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और उनको अगर इतने अमाउंट का एनर्जी दे दे, दैट मीन्स ईसी माइनस ईडी, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में एंड दैट विल हेल्प इन कंडक्शन. क्लियर है? किसी को डाउट? सर पॉइंट 2 एक बार डिस्कस कर दीजिए तो एक बार. ठीक है. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास पहले क्या होंगे? इंट्रिंसिक केस में क्या है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें बॉन्डेड है उतने रहेंगे और आपके जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दोगे तो यहाँ से जितनी बॉन्ड ब्रेक होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रिएट होगा. तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा कंडक्शन बैंड में, होल यहाँ पे क्रिएट होगा. बट जब आप डोनर एटम ऐड करते हो तो डोनर एटम ऐड करने के बाद क्या होता है? जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, these electrons require only small amount of energy. ठीक है. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. तो इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. और आयनाइजेशन एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो अगर आप इस पर्टिकुलर एनर्जी डायग्राम से कंपेयर करो तो हमारे पास इनिशियली इसके बीच का डिफरेंस कितना था? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम सिलिकॉन के केस की बात करें एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन, तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था. और जो हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं थ्रू डोनर एटम्स, तो उनको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको मूव कराने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 0.045. तो अगर ये डिफरेंस 1.21 है तो ऑब्वियसली कोई जो एनर्जी लेवल होगा वो इस कंडक्शन बैंड के पास होगा. ठीक है. जिसको जो डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल का वो इनिशियली जो 1.21 था अब वह है वो 0.045. तो 0.045 कुछ ऐसा होगा. ये ईडी आप देख रहे हो एक डैश से बनाया गया है. ये एनर्जी लेवल है डोनर एटम का. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली प्रेजेंट है. when you give sufficient amount of energy, that is temperature equivalent to 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में. क्लियर है?
Yes, sir. Yes, किसी को sir. अभी भी डाउट है? किसी को भी कहीं पे भी डाउट? No. ठीक है। No, sir. तो अब हमें 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जरूरत है टू मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड। अब इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये डोनर एटम से आया है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज डोनर एनर्जी लेवल। तो ईडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका कंडक्शन एनर्जी लेवल है ईसी, और यहाँ पे आपका ईवी है वैलेंस एनर्जी लेवल। तो अब आपको पता ऐसे ही चल रहा होगा कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर कंडक्शन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो पहले हम प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि कैसे हो रहा है, मतलब कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इनिशियली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। बट होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होते हैं वो सारे के सारे कभी कभी आपके आयनाइज नहीं होते हैं, मतलब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं और उसको आयनाइज नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में जितने आयनाइज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनडी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि these donor atoms are donating electrons। तो जब आप डोनेट करते हो तो आपके पास प्लस का चार्ज आता है, और जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास नेगेटिव का चार्ज आता है। तो जितने आयनाइज हो गए, आयनाइज मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने एटम्स ने इलेक्ट्रॉन अपने डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन एनर्जी लेवल में भेज दिए, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनडी प्लस से। अब यहाँ पे एनडी प्लस इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स एनडी। अल्फा आपका फ्रैक्शन में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही कुछ 70-80% के आसपास होगा एनडी का, कैपिटल एनडी का। तो वो अल्फा आपका 0 से 1 के बीच में वेरी कर सकता है, कोई भी वैल्यू। नाउ जो हमने पहले बात किया था चार्ज न्यूट्रलिटी का, वो यहाँ से भी एक्सप्लेन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ होल्स पहले से थे, ठीक है। फिर जो चार्ज जनरेट हो रहा है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डोनर एटम, उसको हम क्या कह रहे हैं, एनडी प्लस से। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव क्या होगा, एक तो होल के थ्रू आया और एक जो डोनर एटम्स ने डोनेट किए उसके थ्रू आया। तो ये टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स के थ्रू जो चार्ज जनरेट हुआ उसको आप ऐड करोगे, प्लस टोटल नंबर ऑफ होल्स के थ्रू जो चार्ज है उसको ऐड करोगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे हो रहा है। तो जनरेट कैसे हो रहा है आपका, जितने बॉन्ड आपके ब्रेक हो रहे हैं बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो वो आपका n इक्वल्स टू p हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो डोनर एटम दे रहे हैं और आयनाइज होके जा रहे हैं वो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनर एटम से आ रहे हैं, तो उसको हमने ऐड कर दिया और वो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स इन मेजॉरिटी है। तो होल्स इन मेजॉरिटी है तो क्या होगा कि जो आपका एक्सेप्टर लेवल होगा, मतलब जैसे यहाँ पे डोनर लेवल है वैसे ही यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल है। तो एक्सेप्टर लेवल में इनिशियली क्या होगा, होल होगा, क्योंकि एक्सेप्टर लेवल किसकी वजह से आ रहा है, बोरॉन एटम की वजह से आ रहा है। यहाँ पे जो डोनर लेवल आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, फास्फोरस एटम की वजह से आ रहा था। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, सारा खाली होगा। तो जो नंबर ऑफ होल्स जनरेशन की बात का अगर करें तो एज कंपेयर टू ये जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हम होल जनरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, 1.21 हम मान रहे हैं अगर कोवेलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक करोगे तो।
बट जब आपके पास एक्सेप्टर एटम अवेलेबल है तो उस केस में क्या होगा, एक्सेप्टर एटम होल पहले से रख रहे हैं, तो जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ दिस EL लेवल एज कंपेयर टू कंडक्शन बैंड लेवल। ठीक है, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से एक्सेप्टर लेवल पे मूव कराते हो तो उसमें 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और यहां से मूव कराओगे आप इसको तो क्या होगा, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसकी वजह से जो आपका जितने नंबर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम यूज करते हो उनकी वजह से यहाँ पे एक लेवल जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और उस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे यहाँ पे जितने नंबर ऑफ आपके पहले से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू मूव इनटू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि बहुत ही स्मॉल एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऐसा आपका सिचुएशन बनता है तो उस केस में नंबर ऑफ होल्स बहुत ही ज्यादा होंगे इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सारे के सारे एक्सेप्टर एटम्स आपके जो डोनर एटम्स यहाँ पे सारे तो आयनाइज नहीं होंगे, वैसे ही सेम केस यहाँ पे भी है, सारे के सारे एक्सेप्टर एटम्स आयनाइज नहीं हो सकते। तो Na माइनस इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, वेयर अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to 1, जिसमें से कोई एक वैल्यू होगी अल्फा की। और चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी की बात करें तो चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी कहां से आ रही है, जब एक्सेप्टर एटम नहीं था तो n इक्वल्स टू p था। ठीक है, अब जब एक्सेप्टर एटम आया तो दोज एक्सेप्टर एटम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हो तो इन दैट केस यू गेन नेगेटिव चार्ज, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो दैट्स वाई हम इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेप्टर एटम्स बोरॉन को, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो Na माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेगेटिव चार्ज ये भी है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है ही, तो दीज बोथ ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो जितने नंबर ऑफ होल्स आपके जनरेट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। एक तो बॉन्ड आपका ब्रेक कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और बाकी जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके एक्सेप्टर एटम के थ्रू मूव किए हैं। तो ये सारे के सारे होल्स आपके एक्सेप्टर एटम के थ्रू है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका जो मूव किया है उसके थ्रू जनरेट हुआ है, तो एक होल उसके वजह से है। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स के ऊपर जो चार्ज है उतना ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इन जनरल जो इक्वेशन होती है वो ये होती है Nd प्लस पी इक्वल्स टू Na माइनस प्लस एन। अगर हमारे पास ऐसा कोई सेमीकंडक्टर है जिसमें दोनों टाइप्स के सेमीकंडक्टर का आपका डोपिंग हुआ है, ऐसे होते हैं, ऐसे आपको डिवाइसेस आप पढ़ोगे बहुत ही हायर लेवल पे, तो उसमें क्या होता है कि आपको पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स आप यूज करते हो, और इन दैट मतलब उस केस में हमारा क्या होता है कि जो इक्वेशन होती है चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी की वो ये होती है Nd प्लस पी इक्वल्स टू Na माइनस प्लस एन। तो यही सारे इक्वेशंस हैं, इनमें से हमने उस पर्टिकुलर टर्म को रिमूव कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो यहाँ पे हमारे पास डोनर एटम्स थे, तो डोनर एटम में एक्सेप्टर एटम तो होगा नहीं, तो हमने एक्सेप्टर वाले टर्म को रिमूव कर दिया। अब इस वाले टर्म से आप इसको कंपेयर करो तो क्या होगा, यहाँ पे डोनर एटम नहीं है तो हमने डोनर वाले टर्म को रिमूव कर दिया। तो इक्विवेलेंटली अगर आप बोलो तो जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो ये है, बट इन द केस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर यू हैव टू रिमूव अ पर्टिकुलर टर्म। तो एक टर्म आप रिमूव करना पड़ेगा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज न्यूट्रलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो।
अगर आपको डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट. No doubt, sir. ओके, सो पीएन जंक्शन डायोड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, इससे पहले आई जस्ट वांट टू शेयर अ वीडियो विथ यू. देखते हैं इस टाइम चलता है कि नहीं, फिर भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार शेयर कर देता हूँ आपके चैट बॉक्स में. ओके सर. सो अगर आपको कहीं पे भी बोरिंग लगे, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, देन प्लीज आप बोलिए, सो दैट मतलब हम वहां के बाद आगे कभी और कर सके, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग. ठीक है, सो let me present the particular tab. Yes. This is not in the notes. This is a semiconductor, okay, silicons, and they cannot conduct electricity. But if you heat this semiconductor, you heat these semiconductors, let's say these electrons, okay, so these electrons, it may jump to higher shell, okay, outer shell, and then it become a free electrons, and then it can move, okay, for example. So can you see that? Initially, yeah, the electron is here, okay, but if you heat it, then this electron can jump out. Okay, now jump out, it will go to the positive plate. Okay, you see there are two plate here, positive plate and negative plate. So this is in this thing is inside an electric field. Okay, so the electron jump out, then it will go to the positive plate. So this is the flows of the electrons. No matter where the electron is, the electron here or here or here. So when it jump out, it will go to the positive plate. So it jump out, okay, and go to the positive plate, and then it will leave a hole here. The hole, it carry positive charge, and it will attract electrons. It can attract electrons from the surroundings. Let's say it attracts the electrons from here. Okay, so you see what happens here. Okay, so you see the electrons from here, move into this hole. When the electron move into this hole, it fill this hole, okay, then the hole disappear. Okay, and when the electrons jump out from here, go here, okay, then it will leave a hole here. So then you see, the hole initially the hole is here, okay, then the hole move here, right? So initially the hole is here, okay. Let me show you again. Initially the hole is here, okay. When the electrons from here jump to this hole, okay, so then the hole move here. The electrons jump back to the hole to fill the hole, and the hole disappear. This is called the recombinations. Recombinations. Okay, recombinations. Okay. Then the hole won't stop here because it can attract electrons from other place, right? Okay. So then let's say the electrons from here, okay, go inside here. Then the hole, now the hole come here already. Okay, the hole come here. And then, okay, again, the electrons from here go here. Okay, electrons from here go here. Then the hole is here already. So you see the hole is moving. The holes move from here to here. After that, it moves from here to here, and then move to here. Okay. So let's see how the hole move. Okay. So the process continue. You see the hole is keep on moving. Okay, so you see the hole move from here to here, okay, to here, and then it move from here to here, and then move from here to here. Okay, you keep on moving, and again, see the holes moving. Okay,
So you see the hole moved to this one. Okay, after that it moved to this. After that it moved to this, and after that it moved here. Okay, so when you reach here, okay, the negative plate, the negative plate has a lot of electrons. Okay, so the negative plate can give 1 electron to the hole. Okay, then finish. Okay, so finish the life spans of the hole. Okay, so you see the hole initially is here. Okay, it moves and then go to the negative plate. Okay, so this is called the flows of the hole. That's how the hole moves. The flows of the hole, and the hole carry positive charge. So it's a charge carrier. Electrons will move to the positive plate. Okay, electrons move to the positive plate, and the hole move to the negative plate. So there are two types of flow in a semiconductor: the flows of the electrons and the flows of the hole. Okay, so these two conduct electricity. So that is how the electrons and the hole conduct electricity in a semiconductor. So I hope आपने देखा होगा easily, and I have also shared the link in the chat box. So in that video we have seen कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल के थ्रू करंट मूवमेंट होता है. Okay. So after this we will move to our next topic, that is p-n junction diode. So आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट टॉपिक है p-n junction diode, और इसके आगे जितने भी हैं टॉपिक्स वो सारे के सारे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है. बट प्रीवियस टू दिस टॉपिक हमने जो भी पढ़े हैं वो सारा आपका बेसिक टॉपिक था, और इस टॉपिक पे पहुंचने के लिए वो सारा हमें पहले जानना जरूरी था. सो वी हैव गॉन थ्रू विद दोस टॉपिक्स. बट ऐसा मत समझना आप कि केवल यहाँ से आपके सिलेबस में है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा. वी विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दोस पोर्शन आल्सो, बट क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी होगी या क्वेश्चन की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही मतलब उतनी हाई क्वालिटी की नहीं होगी. जस्ट बेसिक आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, या सिंपल आपसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैच जो आपका होता है मैच द कॉलम, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बट यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम हियर वी विल सी न्यूमेरिकल पोर्शन आल्सो. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इधर से हमारे बनते हैं सारे. अभी तक हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं थे. इसके आगे हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो हम अपने होमवर्क में या असाइनमेंट में जिसमें भी होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास. सो अभी तक कहीं पे भी किसी को भी डाउट है तो प्लीज आस्क, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, अदरवाइज विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, p-n junction diode. Okay. So p-n junction diode. p-n junction diode means आपको नाम से ही क्लियर है कि डायोड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल डिवाइस है. ठीक है, एक आपका ये टर्मिनल है और एक आपका दूसरा टर्मिनल है. डायोड एक तो डायोड और दूसरा डायोड का मतलब ये है कि इसमें दो टाइप के आपने सेमीकंडक्टर लिए हुए हैं. दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी के हैं. एक पी टाइप सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डायोड. p-n जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें p और n टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको हमने ऐसे
ऐड किया है या ऐसे जोड़ा है कि इनके बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है एंड दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज पी जंक्शन, और उस जंक्शन के वजह से ही हमारे जो करंट होता है वो हम कंट्रोल करते हैं। तो मेनली जो जंक्शन है इसमें उसी का सबसे ज्यादा रोल होता है और उसी की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो हम कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर डिवाइस एज पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट है आपका कि अ पीएन जंक्शन इज फाउंड एट द बाउंड्री बिटवीन अ पी टाइप एंड सेमीकंडक्टर क्रिएटेड इन अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग। तो हम करते क्या है कि एक ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले से पी टाइप और एन टाइप है तो बस जोड़ दिया और हमारा बन गया। हम क्या करते हैं कि जब इसको प्रिपेयर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ये पूरा का पूरा एक एज अ होल सिलिकॉन होता है, मतलब पूरा एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन स्ट्रक्चर मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें कोई भी इम्प्योर एटम एडेड नहीं होते हैं, और इम्प्योर एटम एडेड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी हमारा कंडक्शन इजीली नहीं होगा, हमारे पास कंडक्टिविटी हाई नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक रीजन में पी टाइप को डोप करते हैं और दूसरे सेक्शन में हम एन टाइप को डोप करते हैं। वो ऐसे डोपिंग करते हैं कि हमें पहले से पता होता है कि कितने एरिया तक पी टाइप की डोपिंग करनी है, एरिया तक एन टाइप की डोपिंग करनी है। तो ये एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी विल सी इन आवर ट्रांजिस्टर सेक्शन, ठीक है, जब हम बीजेटी पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसमें क्या होता है कि एरिया तीनों रीजन का अलग अलग होता है, जो एनपीएन या पीएनपी आपने सुना होगा इन योर 12th। तो वहां पे एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, बट यहाँ पे इक्वल एरिया में हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन में। तो यहाँ पे इस साइड में आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर करनी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मींस कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स की डोपिंग करनी है इन स्ट्रक्चर, और इस रीजन में हम ऐसी डोपिंग करते हैं कि ग्रुप 5 एलिमेंट्स की डोपिंग, दैट मींस कि फास्फोरस टाइप ऑफ एटम जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। जब इसकी हम डोपिंग करेंगे तो आफ्टर डोपिंग क्या होगा कि इनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ होल्स हैं और इस सेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको आप ऐसे फिजिकली अज्यूम कर सकते हो कि जैसे आपके पास सेंट की शीशी होती है या डीओ की शीशी होती है, तो जब आप स्प्रे करते हो तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्विकली पूरे सराउंडिंग में फैल जाते हैं। तो वैसे ही है, ये मान लो कि एक परफ्यूम है जिसमें एन टाइप के डोपिंग, और इस साइड एक परफ्यूम है जिसमें पी टाइप की डोपिंग हुई है। तो इधर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इधर बहुत कम अमाउंट में है, और जो इसके पार्टिकल्स इधर बहुत कम अमाउंट में है। तो इनकी टेंडेंसी होगी कि इस हाई वाले क्राउडेड एरिया से लो क्राउडेड एरिया की तरफ मूव करे। तो इनकी टेंडेंसी इधर को जाने की, इस पी टाइप वाले जो होल्स हैं उनकी टेंडेंसी होगी इधर जाने की। तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स पी साइड और होल्स विल मूव टुवर्ड्स एन साइड। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। सो जैसे ये मूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो ग्रुप 3 के एटम्स हैं, ग्रुप 3 के एटम्स में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन करने की कैपेबिलिटी है, और इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है। तो होगा क्या कि इस जंक्शन में क्या होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, तो दोनों एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, और एक एक्सेप्ट करेगा और एक डोनेट करेगा। तो जब एक्सेप्ट और डोनेट करेंगे तो इनके बीच में एक चार्ज फॉर्मेशन होगा क्या कि जो आपका ये एटम्स होते हैं वो एक इमोबाइल चार्ज यहाँ पे छोड़ जाते हैं। इमोबाइल चार्ज मींस इनके ऊपर एक चार्ज है जो ये छोड़ जाएंगे। इनिशियली तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही ये डोनेट करेंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर चार्ज आएगा, और वो चार्ज होते हैं इमोबाइल। इसको आप समझने के लिए इस वाले फिगर पे मूव करते हैं हम। जैसे ये फिगर आप देख सकते हो,
इसमें पी टाइप जो है आपका वो बोरॉन एटम्स है और इधर आपके फास्फोरस एटम्स। तो बोरॉन एटम्स में पहले क्या है, होल्स है, और जब होल्स आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस रीजन में क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। जब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इमोबाइल चार्ज कैरियर होता है, वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, जितने भी बोरॉन एटम्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली दिस साइड क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या टेंडेंसी, डोनेट का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट करेंगे वो अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, और ये चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, ये चार्ज जो होते हैं, ये इमोबाइल चार्ज होते हैं। ठीक है, इसको ये कैरियर्स मूव कराते हैं इधर से उधर और इसको इधर से इधर। मतलब जो होल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को मूव कराते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं, इसीलिए इनको चार्ज कैरियर्स बोला जाता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब यहाँ पे ये एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे, मतलब इनकी देने की कैपेबिलिटी है और इनकी लेने की कैपेबिलिटी है, तो ये कट करेंगे तो ये एक चार्ज कैरियर अपना यहाँ पे छोड़ेंगे। जब सारे के सारे एटम्स यहाँ पे छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स का एक ग्रुप डिपॉजिट हो जाएगा, बहुत ही क्राउडेड हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज का एक ग्रुप डिपॉजिट हो जाएगा। अब जितना ज्यादा ये डिपॉजिट होगा उतना मूवमेंट इनका आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउडेड बहुत ज्यादा हो गया। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इनके बीच में मूवमेंट क्लोज हो जाएगा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा इन दोनों के बीच। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब आपका नहीं होगा, इनके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं तो उनके बीच में एक वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव होता है। डायरेक्शन आपका इधर की तरफ होगा, लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक होगा, और एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, पोटेंशियल को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन वोल्टेज। ठीक है, और इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। जो ये आपका रीजन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से बना है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि इस रीजन की वजह से जो हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, तो इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और ये आपका जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है बाय दीज डिपॉजिटेड आयंस। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। यहां तक क्लियर है सबको? सर हाँ बताइए। तो फिर जंक्शन में तो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज न्यूट्रल नहीं है, ये जंक्शन तो बना हुआ है, ये इमोबाइल है। चार्ज न्यूट्रल कब होता है, जब चार्ज मूव करता। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन को कैरी करके मूव कर रहे थे। जैसे ही जंक्शन पाया, बोरॉन का कैपेबिलिटी है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स की, तो जैसे ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेगा यहाँ पे अपना चार्ज छोड़ेगा। जब आप क्या करते हो, बोरॉन पहले क्या था, न्यूट्रल था। जैसे ही उसने एक एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करते ही क्या होगा, उसके पास नेगेटिव आयन क्रिएट होगा। वो नेगेटिव आयन यहाँ पे डिपॉजिट, जितने भी बोरॉन एटम्स ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, वो सारे के सारे एटम्स नेगेटिव आयन को लेंगे यहाँ पे, और नेगेटिव आयन यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। जैसे जैसे डिपॉजिट होगा वैसे वैसे उनका क्राउड बढ़ता जाएगा। सेम केस आपका दूसरे साइड भी होगा। दूसरी साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चार्ज पॉजिटिव आयन को कैरी कर रहे हैं। तो
ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जब ये डोनेट करेंगे यहाँ पे इस जंक्शन पे, तो डोनेट करेंगे तो ये चार्ज कैरियर को छोड़ देंगे या पॉजिटिव आयन को छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे पॉजिटिव आयन जितने भी एटम्स छोड़ेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे क्राउडेड होते जाएंगे। तो ये जो चार्ज होते हैं, ये आयन्स होते हैं, ये इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। जैसे जैसे वो एटम्स अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, वो सारे के सारे अपने आयन को यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये मूव नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जब ये मूव नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या होगा, क्राउडेड हो जाएगा सारा का सारा, और क्राउडेड होगा तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगा। लेयर कैसा कि इसके आगे और पीछे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इस लेयर को जहां पे आपका आयन आ रहा है, ठीक है, वो सारे आयन वाले लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, या डिप्लीशन रीजन। और ऑब्वियसली जब आयन है तो दैट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन। तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज भी वहां पे, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसने ऐसे इंडिकेट किया है। क्लियर है सबको? यस सर, थैंक यू। सर ओके सर हाँ बताइए। तो फिर सर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे जो होता है इमोबाइल चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, और पी टाइप पे नेगेटिव। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इमोबाइल चार्ज कैरियर होता है, चार्ज होता है, बट कैरियर क्या है, आपका होल है। तो जो होल है वो इमोबाइल चार्ज नेगेटिव को कैरी करके मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इमोबाइल चार्ज पॉजिटिव को कैरी करके मूव कर रहा है। दैट्स वाई हम इनको कैरियर बोलते हैं, जो होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज टू आर कॉल्ड एज कैरियर्स, क्योंकि ये कैरी करके चलते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को। तो जैसे ही यहाँ पे आप उनको इंटरैक्ट कराओगे, तो ये क्या करेंगे कि अपने कैरियर्स को वहीं पे छोड़ देंगे जो आपके आयंस है। और जब आयंस यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे क्राउडेड रीजन फॉर्म होगा, और उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और उस डिप्लीशन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है और वोल्टेज जनरेट होता है। क्लियर है सबको? यस सर। Now the term diode means two electrode and arrow indicates direction of conventional current through it. तो ये इसका आपका नोटेशन है, सिंबल है डायोड, कैसे आप इंडिकेट करते हो। और ये एक एरो आपको शो हो रहा होगा, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द करंट फ्लो डायरेक्शन। सो करंट फ्लो डायरेक्शन को ये करता है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। एनोड पे अगर आप पॉजिटिव देते हो और कैथोड पे आप नेगेटिव सप्लाई देते हो, देन करंट विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और ऑपोजिट बायस देते हो, मतलब यहाँ पे आप पॉजिटिव देते हो, यहाँ पे नेगेटिव देते हो, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इन आइडियल केस में ऐसा होता है। So formation of depletion layer after joining N-type material, electrons near the junction tend to diffuse into the P region and leave positively charged ions, donors, in the N region. Vice versa, holes leave fixed ions, acceptors, with negative charge. The regions nearby the PN junction gets charged, forming the space charge region or depletion layer. तो जो region form होता है उसको हम स्पेस रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है, चार्ज का डिपोजिशन हुआ है। तो स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लीशन लेयर, यू कैन दैट रीजन। उसके बाद thus in PN junction without an external applied voltage under thermal equilibrium, a potential difference is formed across the junction and this is barrier potential और junction potential। तो जो हमने अभी डिस्कस किया इस पोटेंशियल के बारे में, इसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं या जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। ऑब्वियसली मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम का
पार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आपको पता है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द बैंड गैप सेक्शन कि क्या होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सेमीकंडक्टर्स में, बैंड गैप का जो डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ही हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। So thus in PN junction without an external applied voltage under thermal equilibrium, a potential difference is found across the junction. और उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर कहीं पे भी? हाँ बताइए। टेम्परेचर रीजन का क्या काम है? डिप्लीशन रीजन का काम आपका जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल करना। सपोज यहाँ पे डिप्लीशन लेयर नहीं होता तो करंट आप कंट्रोल कर पाते? सोच के देखो आप। नहीं सर, नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक। तो जब तक आपका डिप्लीशन लेयर नहीं होगा, डिप्लीशन लेयर की वजह से ही यहाँ पे हम करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं इन डायोड और ट्रायोड जो भी ट्रांजिस्टर हम पढ़ते हैं। और किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नाउ यहीं पे हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप those who have IMCRP ID, please go on your ID and check the test, attempt the test through IMCRP ID। और जिनके पास भी जो आपके पास नहीं है IMCRP ID, then I am sharing the Google form in your WhatsApp group, सो आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज जो भी आप अटेम्प्ट करना, केवल एक ही जगह अटेम्प्ट करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप IMCRP से करोगे तो मेरे लिए बेटर होगा। So okay, thank you all of you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।